Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to continue our last chapter, that is the night sky, and we will be talking about the planets and the more members of our solar system. Right? ये जो members हम लोगों ने अभी तक discuss किया, like we have just discussed the sun and the 4 planets in the previous lecture. In this lecture, we are going to talk about the next 4 planets and the other members like the comets, asteroids, meteors. Alright, so you need to stay till the end and you need to watch these video lectures so that you get the information you need to crack the school examination as well as the Olympiads. Alright, that is the most important thing. Now, you can also join us our channel for the 8th class, and you need to write this TTB08 in the search box of the Telegram app. If you do so, you are going to get the information about the video classes when they are going to held. Also, you will be getting the DPPs and study material over there. So you need to stay with us, connect with us by these you can say channels. Alright, now see, this is the most you can say important thing, that this team is going to help you a lot as we are providing the content that you can access through these free video lectures. Also, you can crack the examination and the goals you have set for yourself. You can also watch these video lectures till the end, and you can also share these video lectures to your friends so that they can also watch these video lectures and they also crack their own goals for they have set for themselves. Alright, that is the most important thing. Now, in accordance to that, हम लोगों ने आपको जो lectures provide किए हैं वो तो free हैं ही हैं, उसके साथ भी हमने जो आपके लिए पैकेजेस प्रोवाइड किए हैं, द फुल पैकेज इन द टेस्ट सीरीज 1, राइट, ये हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किया है. एंड टू एक्सेस दोज पैकेजेस you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. alright, तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दो जो है टाइप के पैकेज मिलेंगे, द फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. ठीक है, फुल पैकेज इज कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी things you need to crack the examination, like the you can say the study material, the classes, very much interactive in classes, right, and the homework submission feature. Uske alawa you are going to get the bi-weekly quizzes along with the periodic test papers. All right, so what you need to do is you need to take all these things together, prepare with these, and then you can crack your examination. Okay, either you want to aim for school examination or the Olympiads, right? That is your choice. You can go up for both also, right? You can prepare for both simultaneously. It is doable, right? And the next package, what you will be getting is the test series. So basically, you will be getting periodic test papers, live classes, recorded ones also, bi-weekly quizzes. ये चीज़ें आपको मिलेगी in the test series. You can join that test series right now. The next thing is the good thing that you are going to get a 30% discount on these packages by using the code CYLive, right? So if you use the code CYLive, you are going to get the 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Also, you can call us on the number 919549041111, and this number, on this number you can get up to that how these packages are going to help you, also how these packages can benefit you, right? That is the most important thing, and you can get to know by calling us. Alright, now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. Alright, that is the most important thing. आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, राइट? अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. कैसे हेल्पफुल होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि देखिए, आपने अभी तक जो 8th क्लास के हैं 9 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं. दिस इज द 10th चैप्टर, राइट? अब जब आपने 9 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं और आप 10th कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए दैट यू फॉरगॉट द 9th चैप्टर्स, राइट? दैट शुड नॉट बी हैपनिंग ओवर देयर, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑल द चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर होना है. That is why what you need to do, you need to revise it more often. ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप भूल भी गए हो वो भी आप रिकवर कर लें, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी इन योर ब्रेन, राइट? मेक श्योर व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट क्लास you have 80% of the content in your head so that you can get up to very much, you can say, advanced stage, and you can learn more advanced things over there, the more advanced topics over there,
राइट. दैट इज द यू कैन से योर यू कैन से आपकी एक डिमांड होना चाहिए दैट यू आर मेकिंग इट मोर एंड मोर स्टेबल दैट इन योर ब्रेन. ठीक है, तो ये काम किससे होगा? सिर्फ रिवीजन से होगा, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं हो सकता. सो अलॉन्ग विद watching these video lectures, along with studying the chapter, along with doing all the necessary things for this chapter, you need to revise the previous ones also, right? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. दैट इज द फोर्थ वन, आवर सोलर सिस्टम, एंड दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू टुडे. ऑलराइट, नाउ सी, हमने अभी तक सोलर सिस्टम, सन और 4 प्लैनेट स्टडी किए हैं, राइट. Remember we have categorized the planets into 2 categories, right? हम लोगों ने क्या बताया था? दैट द फर्स्ट कैटेगरी यानी तो कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट. ये 4 प्लैनेट्स, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, दीज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ठीक है, वहीं पर जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, वो 4 प्लैनेट्स आते हैं किसकी कैटेगरी में? जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी में, राइट. जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो होते हैं बहुत ही सॉलिड और रॉकी यू कैन से टेक्सचर वाले, स्ट्रक्चर वाले. ठीक है, बट बहुत ही छोटे होते हैं साइज में. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लास्ट के 4 प्लैनेट्स की यानी कि जोवियन प्लैनेट्स की, so they are very big in size and they have you can say a very much gaseous environment. ठीक है, वो थोड़े gaseous structure के होते हैं, है ना, और बहुत ही you can say काफ़ी कम temperature होता है उनका as comparison to the first 4 planets over there. ठीक है, तो अब हम जोवियन planets की बात करेंगे and those are the you can say Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. All right, so let's start with the Jupiter. So this Jupiter is the 5th planet in our solar system and this is the first planet in the Jovian category. Also this is the you can say biggest planet in our solar system. ये सबसे बड़ा है ये planet and इस planet को stormy planet भी बोला जाता है. ठीक है, because उस पे काफ़ी सारे storms आते रहते हैं, right? So see, it is the largest of all the planets. ये सभी planets में सबसे बड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी अकॉर्डिंग टू नासा जुपिटर हैज 53 confirmed moons and 26 unconfirmed moons. They are unconfirmed because we are waiting to get more information about them, right? तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो पुराने प्लैनेट्स हैं, यानी कि पुराने तो नहीं बोल सकते, मतलब फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हैं दे हैव वेरी फ्यू नंबर ऑफ मून्स. जैसे कि वीनस और मरकरी, ये दोनों प्लैनेट है जिनके तो मून ही नहीं है, राइट. जो हमारा अर्थ है उसके पास एक मून है जिसे हम मून बताते हैं, राइट. वैसे ही मार्स के पास 2 मून हैं जिसे हम फोबोस एंड डीमोस बुलाते हैं. ठीक है, लेकिन जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं यानी कि पीछे के 4 बड़े प्लैनेट्स होते हैं, दे हैव वेरियस नंबर्स ऑफ मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स. ठीक है, जैसे कि हम अभी जुपिटर के केस में देख सकते हैं 53 कंफर्म्ड मून्स हैं वहां पे एंड 26 अनकंफर्म्ड मून्स हैं. 26 अनकंफर्म मून का मतलब ये कि वो जो मून है उनका अभी हमने नाम नहीं रखा है. ऑल्सो देयर इज मोर रिसर्च इज गोइंग ऑन अबाउट दैम. वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दैम. ठीक है, इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि अभी इसके पास टोटली कंफर्म्ड जितने मून्स हैं 53 हैं. बट अगर ये 26 अनकंफर्म मून अगर कंफर्म हो जाते हैं, सो यहाँ पर जुपिटर को 79 सैटेलाइट्स मिल जाएंगी, राइट. एंड दैट इज द मेन थिंग कि भाई उसके पास 79 सैटेलाइट्स होंगी. दैट इज अ वेरी बिग, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स अभी जुपिटर के पास हैं. ठीक है, अनकंफर्म्ड होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो यू कैन से मून है वो किसके पास है? जुपिटर के पास है. एक तो बिगेस्ट इन साइज, राइट, ऊपर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स आर ओवर देयर. ठीक है, इसमें से यू कैन से सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, मतलब सभी सैटेलाइट्स में से सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, जो मून है, वो है गैनीमेड. उसका नाम क्या है? गैनीमेड. वो सबसे बड़ा है. ठीक है, आउट ऑफ दीज 53 कंफर्म्ड मून्स ओवर देयर. ठीक है, देखिए जुपिटर जो है वो एक बार मतलब 1 डे ऑन जुपिटर. ठीक है, 1 डे मतलब अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करना,
तो जब वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो कितना टाइम लेता है, 10 आवर्स ओनली, जिसे हम बोलते हैं जोवियन डे, राइट। तो वो सिर्फ 10 आवर्स में अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर लेता है, ठीक है, दैट मीन दैट इज द जोवियन डे। वहीं पर अगर हम बात करें कि वो मतलब जोवियन ईयर, दैट वुड बी लाइक 1 रिवॉल्यूशन अराउंड दी अर्थ। तो वो 1 रिवॉल्यूशन अराउंड दी अर्थ कितने दिनों में करता है, दैट इज 12 अर्थ ईयर्स। इतना ज्यादा टाइम लगता है 1 जोवियन ईयर को, मतलब जुपिटर को एक बार सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 12 अर्थ ईयर्स जो हैं वो मतलब उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ ईयर्स बोला जा रहा है ये हमारी अर्थ का टाइम है, राइट, उसको हम जोवियन ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जब तक हमारे अर्थ पे 12 ईयर्स नहीं हो जाते, मतलब हमारी अर्थ 12 टाइम सन का रिवॉल्यूशन नहीं कर लेती, तब जाके इसके ऊपर 1 ईयर होता है, ठीक है। तो मतलब if by mistake if somebody is living on Jupiter, let's imagine if somebody is doing that, then उसका बर्थडे every 12 years में एक बार आएगा, and that would be so much big amount of time now। तो देखिए, now let's talk about the Saturn, next planet and the you can say the 6th planet in our solar system। इसका हिंदी में नाम है शनि, राइट, एंड ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ इट्स रिंग, राइट। ये प्लैनेट है जिसके पास है रिंग्स। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड इवन द वेरियस थिंग्स वो टोटली सिमिलर हैं किसके, जुपिटर के हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट ओवर देयर, मतलब जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, ठीक है। इट हैज रिंग्स, दैट्स व्हाई इट्स ब्यूटीफुल, राइट। तो देखिए, जो हमारा सैटर्न है वो जुपिटर में साइज, मास और कॉम्पोजिशन इन तीनों ही कैटेगरीज में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। एंड इट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। ये अलग से ही नजर आ जाता है, रीजन इसके पास बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स अराउंड द सैटर्न, और ये रिंग्स बनी होती हैं डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस ओवर देयर, ठीक है। सो ये जो रिंग्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस इसे देती हैं, ऑलराइट। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स सराउंडिंग दिस प्लैनेट, और ये जो रिंग्स हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लैनेट यू कैन वॉच दी विद टेलीस्कोप, राइट, नॉट द प्लैनेट। हाँ, प्लैनेट को कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप टेलीस्कोप से व्यू करते हैं देन यू कैन वॉच आउट दीज रिंग्स, दीज ब्यूटीफुल रिंग्स ओवर देयर, ठीक है, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। गैलीलियो was the first to observe these rings with the telescope। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से फर्स्ट टाइम इन रिंग्स को ऑब्जर्व किया था। Till then nobody observed the rings of the Saturn, alright, so he was the first one who उसने जो है ऑब्जर्व किया था। Now according to NASA ये जो हमारा सैटर्न है उसके पास 53 confirmed moons हैं and 29 अनकन्फर्म्ड मून्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 53 ऐसे मून हैं जिनका नामकरण हो चुका है, जिनका नाम रखा जा चुका है और उनको मून की कैटेगरी में रख दिया गया है। स्टिल देयर आर 29 अनकन्फर्म मून्स, ऐसे मून जो अभी तक जिनका नामकरण नहीं हुआ है या फिर उनके बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है कि भाई ये जो 29 अनकन्फर्म मून है अगर ये कंफर्म हो जाते हैं तो टोटल मून कितने होंगे, 82, ठीक है। 82 मून होंगे किस पर, सैटर्न पे। अब इन मून में से जो अभी तक कंफर्म मून हैं उनमें से टाइटन इज द बिगेस्ट वन, ठीक है। टाइटन इज द बिगेस्ट मून ओवर देयर, ऑलराइट, यू कैन से इन सैटर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे एंड द ईयर ऑन द सैटर्न। सो लुक अप टू दैट। Saturn take 10.7 hours, all right, 10.7 hours to rotate about on its own axis, right। खुद की एक्सिस पर रोटेट करने के लिए it takes about 10.7 hours, ठीक है। लेकिन किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। इट इज लाइक यू कैन से ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, राइट। अब देखिए जिसे हम सैटर्न डे बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न ईयर एंड दैट इज 29 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब वन टाइम, मतलब सिंगल वन टाइम जो सैटर्न है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 29 अर्थ ईयर्स का टाइम लेता है, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट ऑफ टाइम ओवर देयर। सो जो भी लेट्स इमेजिन इफ समबडी इज लिविंग ऑन दी सैटर्न तो उसका बर्थडे एवरी 29 ईयर्स में एक बार आता होगा। दैट इज सो बिग टाइम, राइट, बिगर देन द जुपिटर वन, ऑलराइट।
So now let's talk about the next one, that is the Uranus, the third planet of our solar system, sorry, seventh planet of our solar system and third Jovian planet, जिसका हिंदी में नाम है अरुण. ऑलराइट, सो आप ये देख सकते हैं यूरेनस को थर्ड मोस्ट यू कैन से बिगेस्ट प्लैनेट बोला जाता है. मतलब फर्स्ट जुपिटर, देन कम्स द सैटर्न, देन कम्स द यूरेनस इन साइज, राइट. और इसके ऊपर ज़्यादातर ऐसा जो है ऑब्जर्व किया गया है कि इसके ऊपर ज़्यादातर मीथेन गैस प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट्स सी, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. ठीक है, इट्स डायमीटर इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 4 टाइम्स इज द डायमीटर्स ऑफ द यूरेनस. ठीक है, तो वो 4 टाइम्स बड़ा है. एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो यूरेनस के अंदर, मतलब यू कैन से यूरेनस कैन कंटेन 64 अर्थ्स इन इट. कैन यू डू इट? 64 अर्थ्स. It can contain as many as nearly 64 earths in it. So ये कितना बड़ा है? It is the third largest, right? ये तीसरा है. Look up to that कि अगर ये 64 earths को contain कर सकता है तो जुपिटर कितने सारी earths को contain कर सकता होगा? That would be so big, right? Hydrogen and methane have been detected in the atmosphere of this planet. Main gases जो कि वहाँ पर जो है present हैं, those are the hydrogen and methane. राइट, एंड इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है. ठीक है, दिस प्लैनेट इज ऑब्जर्व टू हैव ब्लू ग्रीन कलर्स. दिस इज बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन इट्स कोल्ड क्लियर एटमोसफेयर. तो उसका जो एटमोसफेयर है उसमें ज़्यादातर ये मानना है कि भाई ज़्यादातर वहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मीथेन गैस इसको यू कैन से काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस मिलता है. राइट, ये रीज़न किसका है? इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होने का है. राइट, सो यू कैन सी अप टू दैट ये ब्लूइश ग्रीन ही दिखाई देता है. इट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इन अ 4 decade लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ द वे द प्लैनेट रोटेट्स. इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 4 decades तक, यानी 40 years तक ये कैसे रहता है? अंधेरे में रहता है. ठीक है, दैट द रीजन ऑफ दिस इज द वे इट रोटेट्स. बेसिकली जिस तरीके से रोटेट करता है उस तरीके से वहाँ पर क्या होता है कि ये ज़्यादातर यू कैन से 40 years तक इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंधेरे में रहता है. राइट, नेक्स्ट देखिए, अभी तक 27 सैटेलाइट्स या फिर मून्स यूरेनस के अभी तक डिस्कवर हैं. तो दैट मीन्स यूरेनस हैव 27 मून्स ओवर देयर, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट ओवर देयर. टाइटेरिया इज द बिगेस्ट मून ऑफ द यूरेनस. ठीक है, टाइटेनिया जिसमें से सबसे बड़ी यू कैन से सैटेलाइट है. ठीक है, यूरेनस की. यूरेनस टेक अबाउट 17 hours टू रोटेट वंस. ठीक है, एक दिन यानी अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इट टेक्स अबाउट 17 hours, जिसे हम यूरेनियन डे बोलेंगे. एंड द यूरेनियन ईयर इज about 84 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट द ऑर्बिट ऑफ द सन. मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में पूरा चारों तरफ रिवॉल्व, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में जो लगने वाला टाइम है दैट इज 84 अर्थ ईयर्स. मतलब जब तक अर्थ 84 टाइम्स रोटेट करती है उतने में ये 1 टाइम रोटेट करता है. राइट, दैट इज अ बिग 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 अमाउंट ऑफ टाइम ओवर देयर. नेक्स्ट जो प्लैनेट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द नेपच्यून, द लास्ट वन एंड द लास्ट जोवियन प्लैनेट ऑल्सो. ठीक है, सो नेपच्यून जिसका हिंदी में नाम क्या है? वरुण. ठीक है, ये जो नेपच्यून है एक्चुअली में इसे आइसी जायंट बोला जाता है. ठीक है, आइसी जायंट बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है, सो देखिए इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड इट विजिबल ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप. सिर्फ टेलीस्कोप से ही नजर आता है ये, और ये बहुत दूर है बिकॉज इट इज द लास्ट प्लैनेट. राइट, सन के पास से दूर जाते जाते दिस इज द लास्ट प्लैनेट ओवर देयर.
ठीक है। फिर देखिए इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून, ठीक है। तो रोमन सी गॉड थे नेपच्यून, जिनका नाम इन्हें दिया गया, इस प्लैनेट को दिया गया, राइट। नासा के अकॉर्डिंग नेपच्यून के 14 कंफर्म्ड मून्स हैं, ठीक है। इट हैज 14 मून्स ओवर देयर, और द नेचुरल सैटेलाइट वी कैन से ट्रिटॉन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून, जिसमें से सबसे बड़ी कौन, ट्रिटॉन, ठीक है। तो ट्रिटॉन इज दी यू कैन से लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून को बोला जाता है आइसी जायंट, ठीक है, ठीक है। तो नेपच्यून इज एन आइस जायंट ओवर देयर। मोस्ट ऑफ इट्स मास is a hot dense fluid of icy material, water, methane and ammonia above a small rocky core, ठीक है। तो इसका जो कोर है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, रॉकी है, ठीक है। एंड उसके बाद जितनी भी गैसेस का मोस्ट ऑफ द मास है वो किसकी वजह से है, जो वहाँ पर आइसी मटीरियल्स हैं, ठीक है। एंड दे आर लाइक हॉट डेंस फ्लूइड ओवर देयर, ठीक है, जो कि किन किन के यू कैन से सब मिला हुआ है, जैसे वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, ये तीनों ही वहाँ पर कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हैं। एंड दे गिव अप टू दैट यू कैन से आईसी नेचर ओवर देयर, ठीक है। तो ये जो आईसी यहाँ पर बोला गया है, ये मटीरियल्स आईसी है बेसिकली, राइट। एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ द हॉट फ्लूइड ओवर देयर, ठीक है। डेंस, बहुत ही डेंस फ्लूइड है। नेपच्यून टेक्स अबाउट 16 आवर्स टू रोटेट वंस, एक दिन यानी कि खुद के एक्सिस पे रोटेट करने के लिए नेपच्यून को कितना टाइम लगता है, 16 आवर्स, 16 आवर्स लगते हैं, जिसे हम नेपच्यूनियन डे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेपच्यूनियन डे बोलते हैं। एंड इट टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स to orbit once around the sun. That means 165 rounds of the earth is equals to 1 round of the Neptune, and that is the Neptunian year here, right? So that is a very big amount of time over there, right? You can note up to this. राइट, तो देखो हमने अभी तक सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, राइट। हम लोगों ने सन के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द अदर मेंबर्स दैट आर द कॉमेट्स, सैटेलाइट्स, यू कैन से एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स, ठीक है। सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो एक रॉकी सब्सटेंस होते हैं, स्टोनी सब्सटेंस भी आप बोल सकते हैं। एंड वी हैव एस्ट्रॉइड बेल्ट ओवर देयर बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स का जो ऑर्बिट है, यानी मार्स का पाथ, जिसके यू कैन से जिस पाथ पर मार्स चलता है अराउंड द सन, वो पाथ, एंड जिस पाथ पर जुपिटर सन के अराउंड रोटेट करता है, इन दोनों के बीच में देयर इज वास्ट बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स ओवर देयर। इनको मिनी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। मिनी प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव सिमिलर कॉम्पोजिशन ओवर देयर एज अ प्लैनेट एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। सबसे बड़े जो एस्ट्रॉइड्स अब तक ऑब्जर्व किए हैं वो करीबन 1000 किलोमीटर डायमीटर तक के हैं, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 1 किलोमीटर डायमीटर तक का है। ये जो प्लैनेट्स यानी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इनके अंदर यू कैन से बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओवर देयर, गोल्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यू कैन से सब्सटेंसेस, ठीक है, और यू कैन से अदर एलिमेंट्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। So let's talk about the asteroids over here. These are very small planets or planetoids that are found mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. तो ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? They found are between the Mars and Jupiter. Mars and Jupiter के बीच में they are like having a belt over there named as the asteroid belt. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आपको मिलते हैं, राइट, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आपको मिलते हैं।
Each asteroid has its own orbit and the orbits of all of them are spread over a large distance forming a band. तो ये जो planets होते हैं, ये जो asteroids होते हैं, छोटे mini planets होते हैं, ये इनके अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं एंड क्योंकि वो अपने अपने ऑर्बिट्स पे होते हैं एंड दे स्प्रेड आउट, वो कैसे हैं, स्प्रेड आउट है बिल्कुल, राइट। तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट ऑर्बिट्स एंड दे आर स्प्रेड आउट वी गॉट अ बैंड ऑफ द एस्ट्रॉइड्स ओवर देयर, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपको ऐसा लगता है जैसे वो बैंड है एक तरीके से, क्योंकि वो स्प्रेड आउट हो रखे होते हैं, ठीक है। Astronomers have discovered more than 500 asteroids which are larger than 48 किलोमीटर in diameter. तो ऐसे you can say asteroids जो कि 48 किलोमीटर से ज़्यादा का डायमीटर रखते हों, ऐसे 500 एस्ट्रॉइड्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं, राइट। सबसे बड़े से बड़ा जो एस्ट्रॉइड है उसके पास 1000 किलोमीटर का डायमीटर हो सकता है, छोटे से छोटे का हो सकता है मिनिमम वी कैन से अप टू 1 किलोमीटर उनका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। सेरेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी तक जितने भी एस्ट्रॉइड्स के बारे में पता चला है उसमें से सबसे बड़ा सेरेस नाम का एस्ट्रॉइड है, ठीक है। आप इसे फटाफट से नोट कर लें। ऑलराइट, अब हम एस्ट्रॉइड के बाद कॉमेट्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉमेट्स जो होते हैं वो भी मेंबर्स हैं और कॉमेट्स भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दीज एस्ट्रॉइड्स, बट दे हैव अ वेरी वेरी बिग ऑर्बिट ओवर देयर, ठीक है। सो वी कैन से कि काफ़ी सारे ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो विजिबल होते हैं और कई विजिबल नहीं भी होते हैं। हम कैसे उनको विजिबल मानते हैं, बिकॉज वी गॉट टू सी अप टू लाइक दिस फिगर, हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें होता है एक हेड एंड लार्ज टेल, इट इज वेरी लार्ज टेल अप टू 500 मिलियन किलोमीटर ओवर देयर। इतनी ज़्यादा बड़ी लार्ज टेल वहाँ पर हो सकती है कॉमेट्स की, राइट। कॉमेट्स की टेल क्यों होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो कॉमेट्स जो होते हैं वो आइस यू कैन से बहुत काफ़ी ज़्यादा आइसी, राइट, डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस गैसेस के बने होते हैं, ठीक है। तो वो जो गैसेस है, आइस है एंड द डस्ट पार्टिकल्स, तो उस वक्त इसकी जो टेल दिखाई देती है वो कब दिखाई देती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कब दिखाई देती है, जब ये सन के करीब जाता है, ठीक है। तो जब ये सन के पास जाता है तो क्या होता है, सन की हीट इस तक पहुंचती है, राइट। उस हीट की वजह से उसके ऊपर प्रेजेंट जो गैसेस हैं वो बर्न होती हैं एंड जो आइस है वो मेल्ट अप हो जाता है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, वो बर्न आउट हो जाती है एंड बर्न आउट होने से फ्लेम मिलता है, राइट। ये जो फ्लेम होता है ये आपको एज अ टेल अपीयर होता है, ठीक है। तो ये जो टेल है एक्चुअली दिस इज अ फ्लेम ऑफ वेरियस गैसेस दैट आर वेपोराइजिंग, ऑलराइट, मे बी इट इज द आइस ओवर देयर, राइट। सो ये जो चीज़ें इसी की वजह से उसे टेल मिलती है। अब ये टेल बड़ी होती जाती है जब जब ये सन के चारों तरफ जाता है, ठीक है। जब ये सन के पास जा रहा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी सी टेल बनते जाती है और जब ये सन से दूर जा रहा होता है तो इसकी टेल छोटे होते जाती है, ऑलराइट, एंड देन इट डिसअपीयर्स ओवर देयर, ठीक है। सो कॉमेट हैव टेल्स बिकॉज ऑफ दी गैसेस ओवर देयर जो कि वहां पर बर्न आउट हो जाती हैं। सो देखिए कॉमेट इज एन आईसी वेरी स्मॉल सेलेशियल बॉडी दैट व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन warms and begins to release gases रिलीज करने लगता है, ठीक है। एंड जो है वो वेपराइज होने लगती है वहां पे बिकॉज ऑफ द हीट बाय द सन, ठीक है। फिर आप देखिए इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट पर ये रोटेट करता है एंड दैट इज वेरी वेरी बिग, राइट।
ये आपको पता चल जाएगा। दे बिकम विजिबल फ्रॉम द अर्थ ओनली व्हेन दे कम क्लोज टू द सन। जब वो सन के पास जाते हैं तभी वो अर्थ से विजिबल होते हैं, बिकॉज वी गॉट टू सी इट्स टेल देन, राइट। जब ये सन के करीब जा रहा होता है तभी ये हमको विजिबल होते हैं वहां पे। Alright, they are characterized with a small head followed with a long tail. हम इनको पहचानते ही कैसे हैं कि वो कॉमेट है, because it has a head and then a tail, right? So it has a long tail with a head over there. अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो we see that and we take that as a comet over there. ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। Alright, let's talk more about the comets over there. So देखिए, when a comet comes near the sun, some of the ice turns into the gas. So basis जितनी भी gases वहाँ पर present है वो vapor में convert हो जाती है, they got burned out, right? Also जितना icy material वहाँ पर है वो भी gaseous में change हो जाता है, gaseous you can say form में change हो जाता है जब कभी भी ये सन के क्लोज जाता है, राइट। तो इसे जो है हीट एनर्जी मिलती है वहाँ पर, जिस वजह से ऐसा होता है। The gas and loose dust free from ice create a long illuminating tail that streams behind the comet. जो गैस है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि धीरे धीरे किस तरीके से जा रहे हैं, लूज होते जा रहे हैं, जो आइस है जो गैसेस में कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ उन गैसेस की वजह से ही इसको एक इल्यूमिनेटिंग टेल मिलती है, जो कि इट कैन बी टेकन एज अ स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स ओवर देयर, राइट। तो वो भी क्या है, उसका टेल बन जाता है, राइट। और ये हमेशा कॉमेट के पीछे पीछे रहता है बिकॉज इट इज अ टेल। The tail of the comet could be as long as 800 million kilometer. Comet की जो tail है वो कितनी से कितनी बड़ी हो सकती है, 800 million किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है, and that is a very 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 big distance over there, right? Comets are visible only when they are near the sun. वो तभी visible होते हैं जब वो sun के close हो। Reason? sun के पास जब वो होते हैं तो क्या होता है, they got heat and that's why they have the tail and that is why they get appear to us, right? This is because the intense solar heat then vaporizes parts of their icy matter. उनके पास जो icy matter है उसको vapor में change कर देती है sun की heat, and that is the reason you got a illuminating tail to see, right? There are few periodic comets that appear again and again after a regular या फिर you can say constant interval. कुछ ऐसे comets हैं जो आपको नजर आते हैं, उनमें से एक है Halley's comet. ये हेलीज कॉमेट जो है काफी लंबे यू कैन से इंटरवल के बाद नजर आता है वंस, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट ऐसा ही पीरियोडिक कॉमेट है हेलीज कॉमेट। इट अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 76 ईयर्स। 76 ईयर के बाद वापस से नजर आता है, वापस से नजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिवॉल्यूशन 76 ईयर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। लास्ट टाइम ये अर्थ से विजिबल हुआ था 1986 से, and it is expected to come again or appear again in the year 2062 over there, ठीक है। So that is the information when we talk about the comets. फटाफट से नोट कर लीजिए।
Alright, now let's talk about the meteors, the next member of our solar system, and that is the meteors. आपको पता है meteors के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था. हमको पता कब चला जब गलती से कुछ meteors अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए. एंड व्हेन दे एंटर दे गॉट बर्न. वो किस तरीके से बर्न आउट हुए? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एयर एंड दोज बॉडीज ओवर देयर. ठीक है, तो वो जो दो बॉडीज थी एंड एयर के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से वहां पे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो बर्न हो जाते हैं. ठीक है, एंड आपको एक लाइटनिंग स्ट्रीक नजर आती है व्हेन दे गॉट बर्न. तो वो बहुत तेजी से एक तो अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं, साथ ही साथ वो बर्न भी हो रहे होते हैं. So you got to see a very long streak of fire over there, and that is why these meteors are also known as the shooting stars. Alright, so let's talk about that. Meteors are the pieces of stony or metallic rock widely scattered throughout the solar system. पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में these are spread out like they are everywhere over there. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा spread out हैं and they have a very stony structure, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पत्थर जैसे हैं और यू कैन से मेटालिक वन. ठीक है, सो दीज आर मेड अप ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल ओवर देयर. ठीक है, दे ट्रेवल एट हाई स्पीड्स अराउंड द सन. बहुत ही तेजी से वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो द वंस हु रिवॉल्व अराउंड द सन जस्ट लाइक अदर थिंग्स, राइट? When meteors come close enough to the earth, they are pulled towards the earth by its gravitational force. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ये अर्थ के पास से गुजर रहे होते हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे क्या करता है, इनको एटमॉस्फेयर के अंदर पुल कर लेता है, राइट? और जब ये अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं तो ये तेजी से अर्थ की सरफेस की तरफ आने लगते हैं. ठीक है, देखिए, एज द meteor passes through the earth's atmosphere it get burned due to the immense heat produced by the friction with the atmosphere, leaving a brilliant trail of light behind it. Such a meteor is also called a shooting star. So देखिए, ये अर्थ के पास से जाता है. ठीक है, जब ये अर्थ के पास से जा रहा था तो क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल रहता है तो वो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. तो जब वो अट्रैक्ट कर लेगा तो इट विल एंटर इन आवर एटमॉस्फेयर और बहुत ही तेज स्पीड के साथ अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा. ठीक है, जब ये अर्थ के सेंटर की तरफ बहुत ही तेज स्पीड से जाता है, अब क्योंकि चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, राइट? सो एयर क्या करती है, उसे फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है. उस फ्रिक्शन की वजह से उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है. इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाती है कि वहाँ पर वो बर्न करने लगता है. ठीक है, और वो इतना ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है धरती की तरफ, साथ ही साथ वो बर्न आउट होता है. तो आपको एक बड़ी सी लॉन्ग ट्रेल, आपको बड़ी सी स्ट्रीक नज़र आती है ऑफ द लाइट ओवर देयर. इसी वजह से इनका नाम शूटिंग स्टार्स पड़ा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द meteors आर सो स्मॉल दैट दे बर्न अप कंप्लीटली इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, कुछ बहुत ही छोटे छोटे हैं तो वो पूरे तरीके से बर्न आउट हो जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर लेयर में ही. ठीक है, तो हमको वो नहीं पता चलते. बट सम ऑफ द लार्ज meteors may land on the surface of the earth producing craters. Such meteors which land on the earth are called meteorites. तो देखो, कुछ ऐसे बड़े बड़े meteors भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, बर्न आउट होते होते धरती की तरफ आते हैं और वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं. इवन दे गॉट ब्लास्ट अप टू दैट, और हो सकता है कुछ टुकड़े वहां पर फैल जाएं. ठीक है, उन्हें हम क्रेटर्स जो है बोलते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पे रहते हैं, राइट? एंड इनको जो धरती की सरफेस तक पहुंच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम meteorites बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स नोट दिस आउट, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए.
राइट नाउ देखिए, अभी हमने हमारे हर मेंबर के बारे में डिस्कस किया, राइट. नाउ लेट्स लुक अप टू द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस पैरामीटर्स ओवर देयर. ऑल राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस पैरामीटर्स ओवर देयर, जितने तरीके के जो हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला पैरामीटर है लाइट. ठीक है, तो इसके बेसिस पे वी विल बी डिफरेंशिएटिंग द प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स. ठीक है, अब स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, मतलब दे एमिट लाइट. ठीक है, दे प्रोड्यूस लाइट एंड दे एमिट लाइट. ऑलराइट, सो बेसिकली दोज कैन बी टेकन एज द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर फॉल होने वाली लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो उनकी खुद की लाइट नहीं होती बट दे डू रिफ्लेक्ट द लाइट. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम. देखिए, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, उनकी खुद की लाइट होती है. प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम द सन, इसीलिए वो हमें शाइन होते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोगों ने देखा है वो है नंबर. स्टार्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं. वी टॉक्ड अबाउट दैट कि भाई एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं. सो दे आर वेराइटी ऑफ स्टार्स. देखिए बहुत सारे हैं, बट we have only 8 planets in our solar system, right? So star are countless in number. ठीक है, they are only 8 planets over in our solar system. ठीक है, so this is the second parameter we talked about. Now the third one, size. साइज की बात करते हैं. स्टार्स बहुत बड़े हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपना सन भी तो एक स्टार है एंड दैट इज वेरी 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 बिग. अब अगर हम बाकी प्लैनेट से कंपेयर करते हैं तो भी वो बहुत बड़ा है. सो स्टार्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं. ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं, बट प्लैनेट जो होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं. they are very big in size. They appear to be small because they are very far off from the earth. And we talk about planets, they are very small in size. और हमको बड़े इसलिए दिखाई देते हैं because हमारे काफ़ी नज़दीक हैं वो, राइट. और जो दूसरे जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं. That's why they just look up to as a point sized. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है मोशन. अब हमें स्टार्स कैसे मूव होते हुए दिखाई देते हैं? हमें लगता है कि भाई वो ईस्ट में से राइज होते हैं एंड वेस्ट में जाके सेट हो जाते हैं, राइट. तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार्स जो हैं ईस्ट से जाके वेस्ट में चले जाते हैं. दे अपीयर टू बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअली में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट यूरेनस. यूरेनस को छोड़ के सभी प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ टॉक अबाउट द मैटर. किसके बने होते हैं? स्टार जो है वो बहुत ही हॉट गैसेस होती हैं और वो ज़्यादातर किसकी बनी होती है? हाइड्रोजन की बनी होती है. ठीक है, सो स्टार जो है क्योंकि वो लाइट एमिट करता है तो उसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो दे हैव अ वेरी 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 हाई टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस ओवर देयर एंड दे आर जनरली मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन. बल्कि अगर हम अपने प्लैनेट्स की बात करें तो वो रॉक्स और मेटल्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं. अब स्टार्स तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं, जबकि हमारे खुद के प्लैनेट जो है वो काफ़ी कम टेम्परेचर होल्ड अप करते हैं. ठीक है, और ये तो डिपेंड करता है कि भाई सन से वो कितने दूर हैं. ठीक है, ट्विंकलिंग. स्टार ट्विंकल करते हुए दिखते हैं बट प्लैनेट्स हमको नहीं दिखाई देते ट्विंकल करते हुए. ठीक है, देन टॉक अबाउट द शेप. हमें वो बिल्कुल डॉट नज़र आते हैं. ठीक है, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमें डिस्क शेप के नज़र आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द यू कैन से 8 डिफरेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स ओवर देयर. ठीक है, अब आप फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए. All right, so that was all about the solar system
and the members of our solar system, right? Next class में हम लोग पढ़ेंगे moon के phases and the motion of the earth. We'll be talking about that in the next lecture. Alright, so stay tuned and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.